कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी, साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके कार्यक्रम छात्रों की गूंज पर सवाल खड़े कर दिए। IIMUN की 15वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शशि थरूर ने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद राहुल गांधी का चलाया गया कार्यक्रम छात्रों की गूंज इतना असरदार नहीं रहा जितना कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन असरदार था। राहुल गांधी कितनी जगहों पर इस अभियान के जरिए छात्रों के तमाम मुद्दों को उठा चुके थे, लेकिन उन मुद्दों को वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा कॉकरोच जनता पार्टी को हाल ही में और जल्द ही मिल गया। थरूर ने इसी फर्क के जरिए पार्टी को आईना दिखाने की भी कोशिश की। शशि थरूर ने सवाल उठाते हुए कहा कि स्थापित पार्टियां तब तक अप्रासंगिक रहेंगी जब तक वो उन नई आवाजों को नहीं सुनती जिन्हें उन्होंने अब तक नहीं सुना, और मुझे लगता है कि हमें इस वक्त उन्हें सुनना चाहिए। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने पूरी कांग्रेस पार्टी से भी अपील की और कहा कि हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि हम क्या करने में असफल रहे। क्या हम सुनने में असफल रहे या जनता की नब्ज जानने के पुराने मुहावरों को अपनाने में असफल रहे। थरूर ने भारत की युवा आबादी के बढ़ते महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि दक्षिण एशिया की राजनीतिक पार्टियां अब ये नहीं मान सकती कि राजनीति के पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2029 में जैन जी सबसे ज्यादा वोटिंग ग्रुप होगा। उप महाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों को जागना होगा और इस बात को समझना होगा कि युवा बदलाव चाहते हैं। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं चलेगा। Very, very conscious of what you said. In fact, I've happened to have written a column for next week in which I'm going to make the argument that we have to be conscious of the fact, all the opposition parties, that we didn't provide a route into our parties for the kinds of people who were in Jantar Mantar last month. And to my mind, that is actually something we really need to examine. How do young people get into established parties where there are hierarchies, entrenched establishments, dynastic considerations, political networks? How does a new young person come in? And if they come in, what do they get to do? To stand behind the established leaders, to make up the numbers in mass rallies, to do sort of foot soldier work? Can they actually be the people who make the difference? And I think one thing that I've been arguing, we haven't had an opportunity to have an internal discussion about this in any forum that I'm part of, but that's why I use the public space to make this point. I think we really, as the American expression goes, need to wake up and smell the coffee. Let not our epitaph be that we were bypassed or became irrelevant because we failed to listen. And what Rishabh has said, something that echoes with me. The established parties will cease to be relevant unless they can listen to the new voices that they haven't heard so far. And I think, frankly, we should have started hearing them already with this. Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Jantar Mantar protesters had been taken up by us earlier. We had a Chhatron Ki Goonj thing where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things and so on. And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did. Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into the old cliche of having your finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? And that's something we really need to. दरअसल शशि थरूर ने ये समझाने की कोशिश की कि अगर युवा किसी मुद्दे पर सड़कों पर उतर रहे हैं और राजनीतिक दल उसी मुद्दों को पहले से उठा चुके हैं, फिर भी उनकी आवाज लोगों तक उसी ताकत से नहीं पहुंच रही, तो पार्टी को खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर कमी रही तो रही कहां। थरूर ने अपनी पार्टी के नेतृत्व से भिन्न राय व्यक्त करते हुए अपनी इच्छा का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के प्रति बेवफा नहीं हूं, लेकिन मैं अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करता हूं। कभी कभी मेरे विचारों का इस्तेमाल मेरे विरोधी कर सकते हैं। कांग्रेस सबसे कम अलोकतांत्रिक पार्टी है। क्या आपने बीजेपी में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने असहमति व्यक्त की हो और पार्टी में बना रहा? मैं उस पार्टी में हूं जो मेरे विचारों के सबसे करीब है। लेकिन ऐसे में शशि थरूर ने यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस को इस वक्त जैन जी के साथ उन्हें सोचने, उन्हें समझने और उनको साथ लेकर चलने की कितनी जरूरत है, क्योंकि अब 2029 के चुनाव में जैन जी इस देश में सबसे बड़ा वोटर होगा।
ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।